Hello dear students, welcome to the video today. So children, you know we are carrying on with this third chapter, geography, where we are talking about water resources and conservation of water resources. Extremely important issue. We need to conserve water in all the ways we can, and we need to be very sure about how the water can be kept in a proper manner. अभी तक water conservation का various ways and methods we have done. Now where we had stopped in the last class, I would just like to show you that how the multi-purpose river valley projects are proving to be very harmful for the common people as well as for the people who are living in the forest areas. These areas जहाँ पे कि बांध बनाते हैं, जहाँ पे कि पानी बांध देते हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है. People start facing lot of problem. We need to stop it and we need to look into this issue. So doing such work which is contradictory, एक तरफ हम डेवलपमेंट रोकते हैं, दूसरी तरफ लोगों को डिस्प्लेस भी करते हैं, बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं. बट देन व्हेन वी आर पेइंग प्राइस फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है. तो जब ये कीमत चुकानी पड़ती है, इट हैज़ लॉट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल. तो इसीलिए बांध, मुझे तो लगता है, आई मीन इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग. सो समवेयर it is harmful for the mankind, लेकिन on the other hand it is essential for development. तो दोनों चीज़ें हैं, साथ में चल रही हैं. एक भी चीज़ दोनों में से हम avoid नहीं कर सकते. We cannot avoid any of these two things. Got it? So that's why excessive use of, अब ये देखो, floods आते हैं. When so much of floods come, some of the paper cuttings that are given here, you will be understanding that hurricane lamp, ropes, rubber tubes, umbrella, bamboo stick अपने घर में रखिए. This could be useful. Which the areas जहाँ पे बहुत flood आते हैं, some of the precautionary measures are given here. फ्लड को रोक तो नहीं सकते हैं. देखो, something that is natural. Can we stop the earthquake? Can we stop the flood? No. It's not in our hand. So let's always have the information related to the floods, related to the safety measures that can be taken. ठीक है, prevention is better than cure. बाद में नुकसान होता है, बाद में अचानक से जब बाढ़ आती है, उस समय जब हम मामला कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उससे अच्छा है कि पहले ही हम सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लें. तो रेडियो पे, टीवी पे, फॉर द लेटेस्ट वेदर बुलेटिन्स, फ्लड वार्निंग, इन सारी चीज़ों पे हमेशा नज़र रखना चाहिए. एंड द इंफॉर्मेशन शुड बी पास टू अदर्स. फिर फैमिली इमरजेंसी किट बना के रखनी है कि अगर पानी भर गया घर के आसपास, कोई भी काफ़ी सारी ज़रूरी चीज़ें आप तक जब नहीं पहुंच पाएंगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट अपने आप से करके रखिए. किट अपना बना लीजिए, दैट इज़ फ्लड प्रिवेंशन किट. गॉट इट? आप कैश, ज्वेलरी, वैल्यूएबल्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा जो है, मतलब घर पे नहीं रखे, ऐसा कीजिए कहीं बैंक में रख लीजिए. Somewhere where people can be prevented from these conditions. अब क्या है कि फ्लड के टाइम पे क्या करना चाहिए? Just see, these are some of the measures that are given here. Children, you know, we are also staying, we are means in the UP, the area we are staying, this is also a flood prone area. तो ये सेफ्टी मेजर्स, कितनी बार गंगा के किनारे का एरिया है तो अक्सर ऐसा होता है कि वाटर इंक्रीजेस, वाटर लेवल इंक्रीजेस. तो इससे अपने आप को कैसे बचाना है और हम क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हैं,
दैट वी नीड टू लुक इनटू। ओके, तो ये जब हम इसको जब ध्यान देते हैं, व्हेन वी concentrate on this, then we understand कि how things are to be managed during the time of crisis. Apart from that, children, you are in class 10th, but in class 9th you might have definitely done a project work on disaster management. बेसिक नॉलेज आपको ऑलरेडी दी जा रही है। बेसिक नॉलेज इज इम्पार्टेड टू यू कि क्राइसिस के टाइम पे आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए। यू मस्ट नो अबाउट द क्राइसिस मैनेजमेंट टेक्निक्स व्हेन सडन हैवक हैपन्स। सडनली अगर कुछ हो रहा है तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, इसकी पूरी जानकारी बहुत ज़रूरी है। ओके, ये आप देख लीजिए। इसके बाद जस्ट सी हाउ द क्राइसिस मैनेजमेंट गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प करती है। कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं विच इज़ मेकिंग इट वेरी क्लियर हाउ मैनेजमेंट इज बीइंग डन। गॉट इट? सो व्हेन वी सी दीज, ये सब जब देखते हैं तो डर लगता है, बट देन वी हैव टू फेस द रियलिटी। दिस इज द रियलिटी माय डियर स्टूडेंट्स। गॉट इट? तो हाँ, रियलिटी देख के, रियलिटी समझ के वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश है भाई, अच्छा, एंड chapter 4 class 9th we have already done that India has got a monsoon type of a climate. खूब बारिश होती है, खूब बारिश होती है, खूब बारिश होती है। Why do we need to waste this water? Why can't we use this water? इस पानी का इस्तेमाल सही ढंग से हम क्यों नहीं कर सकते हैं? If we conserve this water, ठीक है, तो ये हमको अब तरीका निकालना चाहिए भैया, हाउ टू स्टॉप द डेवलपमेंट एंड व्हाई टू स्टॉप द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को क्यों रोकेंगे? लेट्स नॉट डू दैट। ठीक है, डेवलप होना है, डेवलप करना है, लेकिन अपने आप को बचाना भी है बहुत सारी चीज़ों से। अब देखो, ये देखिए, राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट को अगर हम रोकते हैं तो हम अपने डेवलपमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, विच इज नॉट अ करेक्ट थिंग। चीज ये सही नहीं है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है ये एक सही टेक्निक है। यस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में के लिए वाटर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे है? वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वायबल ऑल्टरनेटिव। देखो, हर एक चीज का उपाय खोजना पड़ता है। वी नीड टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम। वी जस्ट कांट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। सो दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑल अबाउट। क्या सॉल्यूशन है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? That both socio-economically and environmentally रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमको देखना पड़ेगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसमें क्या है? अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। जब भी हम किसी बड़ी चीज के बारे में बात करते हैं, हम इतिहास के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट हिस्ट्री। एंशिएंट इंडिया में क्या था? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, लॉट ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स वेयर देयर, वाटर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स वेयर देयर। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी उस समय हुआ करता था। लॉट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पानी का जो है किस तरह से हार्वेस्ट करना है, किस तरह से पानी का इस्तेमाल करना है, दिस वाज अ कॉमन टेक्निक। रेनफॉल रिजीम, मतलब कितने दिन तक बारिश होगी, कब तक बारिश होगी, इसका बहुत आइडिया हुआ करता था पुराने ज़माने में लोगों को। मशीनें नहीं हुआ करती थी। There was no weather forecasting. There were no satellites and all this weather forecasting and all. जितना हमारे पास सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, you can see, my dear students, that even the problem is also aggravated. Okay, so people had in-depth knowledge of rainfall regime,
सॉइल टाइप, कैसी क्वालिटी का सॉइल है, किस तरह का एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ये सब जानकारी पहले के ज़माने में बहुत अच्छे से हुआ करती थी लोगों को. एंड डेवलप्ड वाइड रेंजिंग टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा तरीका निकाला. ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, फ्लड वाटर, इकोलॉजिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए everything was very nicely managed by the people in the ancient times. पहले जब रिसोर्सेज इतने कम थे उस समय द पीपल वे आर एबल टू मैनेज. आज ऐसा क्या है कि मैनेज नहीं कर पाते हैं. साइंस हैज डेवलप्ड सो मच, टेक्निक हैज डेवलप्ड सो मच, इतनी फैसिलिटीज होने के बाद भी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है. सो वी नीड टू रिव्यू आवर कंडीशंस, आवर सिस्टम्स. देखना पड़ेगा कि आखिर हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं. ओके. एंड पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स. बड़ी बड़ी वो क्या करते थे कि पानी आ रहा है, अगर पानी शहर में या गांव में घुसने वाला है तो उसके लिए द एंशिएंट पीपल यूज टू मेक गुल्स और कुल्स. वेस्टर्न हिमालयाज में हमको ये स्ट्रक्चर्स मिलते हैं विच इज कॉल्ड एज गुल और कुल इन द वेस्टर्न हिमालय, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए. ओके. देन देयर वाज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. छतों के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बड़ा अच्छा सिस्टम हुआ करता था. इट वॉज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए ये गुल और कुल का सिस्टम था. दिस वॉज अ वेरी वेल प्रैक्टिस सिस्टम. कहाँ पे था? विच स्टेट दिस वॉज प्रैक्टिस्ड? बारिश अगर होती है तो पानी को कलेक्ट करना है और उस पानी का बाद में इस्तेमाल करना है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब जैसे कि जहाँ बहुत बाढ़ आती है, वेयर देयर इज लॉट ऑफ फ्लड, इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड inundation channels. Now what are inundation channels? Just let's see this, children. वही जहाँ से पानी आ रहा है, फ्रॉम वेयर द वाटर इज कमिंग, जिस जगह से पानी आ रहा है वहाँ पे ऐसे व्यवस्था कर दी है, such arrangements have been made that the water is directly channelized to the agricultural field. Okay. In arid area and in semi-arid area, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures. Arid and semi-arid, जहाँ पे सूखा पड़ता है, where there is less water, जहाँ पानी कम है, वहाँ पे यहाँ पे all this rain water was diverted. इस तरह का the arrangements were made as such where these wastage water can be utilized in a proper manner. Water to stand and moisten the soil. वहाँ की जो है मिट्टी बहुत ही moist हो जाती थी. like the खादिन्स, जैसलमेर में खादिन्स हैं, एंड राजस्थान में देयर यूज टू बी जोहाड़. क्या कहते हैं? इन राजस्थान देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ जोहाड़ अर्ली इन द अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान. अदरवाइज देयर वॉज खादिन. मतलब ये सारी व्यवस्था जो है राजस्थान के तरफ ही आपको ये मिलेगी. अच्छा, राजस्थान में बारिश उतनी नहीं होती है, सो दे डेस्परेटली दे रियली नीड वाटर अरेंजमेंट्स टू बी डन. पानी का व्यवस्था, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नीड्स टू बी देयर इन राजस्थान. ये देखिए, एक आपका छत पे पानी इकट्ठा हो रहा है. द वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड ऑन द रूफ. फिर पाइप के थ्रू ये दिस इज गोइंग हियर इन द अंडरग्राउंड, और इसको हैंड पंप से जोड़ दिया है एंड रिचार्ज थ्रू हैंड पंप. और हैंड पंप के थ्रू ये सारा पानी जो है, हैंड पंप की जो पाइप है उसके थ्रू ये सारा पानी जो है धरती के अंदर जा रहा है. इट इज़ वेरी गुड दैट द वाटर टेबल इज रिचार्ज्ड.
नीचे पूरा पानी जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा, ये सारा बारिश का पानी जो है वो नीचे पहुंचा दिया जा रहा है। कितनी अच्छी व्यवस्था है। नाइस अरेंजमेंट, इजंट इट? जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर लेवल, ये बहुत पुराना एक सिस्टम है। धरती के अंदर जो पानी है, whatever water is available below the ground, we need to save that water. If the ground water level decreases, ground water अगर खत्म होता है, इससे ज़्यादा crisis, nothing can be more dangerous than this. It needs to be controlled. It needs to be looked. Got it? तो ये आप देख लीजिए, दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर, रिचार्ज थ्रू हैंड पंप्स। हैंड पंप्स के थ्रू पानी नीचे जा रहा है। एक दूसरा भी है, जस्ट सी वेयर रिचार्ज इज हैपनिंग थ्रू अबंडेंट डगवेल। एक ऐसा कुआं है जो कि मतलब जहां से लोग पानी नहीं ले रहे हैं। पीपल आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम दिस वेल एंड सूखा पड़ गया है, तो इससे ये जो छत के ऊपर जो पानी है वो पानी जो है इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस अबंडेंट वेल, और इससे ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाएगा। अब क्या है, रूफ टॉप रेन वाटर इज देयर, इज कलेक्टेड यूजिंग अ पीवीसी पाइप। उसके बाद इट इज फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक। सैंड एंड ब्रिक मतलब जो भी उसके साथ सैंड एंड ब्रिक, जो भी उसके साथ मट्टी वट्टी आ रही है उस पानी के साथ, वो रह जाएगा। सिर्फ पानी नीचे जाना चाहिए, नहीं तो वो द पाइप दैट इज टेकिंग द वाटर इन द अंडरग्राउंड लेवल, इट विल गेट ब्लॉक्ड। इसको ब्लॉक नहीं करना। फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स, अंडरग्राउंड पाइप टेक्स वाटर टू सम्प फॉर इमीडिएट यूसेज। अंडरग्राउंड वाटर जो अंदर का पानी है, इसमें बहुत अंडरग्राउंड पाइप जो है इट टेक्स वाटर टू सम्प फॉर इमीडिएट यूजेस। तुरंत अगर पानी की ज़रूरत है तो इस पानी का इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। गॉट इट? इट्स अ वेरी गुड थिंग। एक्सेस वाटर फ्रॉम द सम्प, सम्प मीन्स गड्ढा। सम्प इज अ पिट दैट हैज बीन मेड, इट इज टेकन इन टू द वेल। जस्ट सी दिस इज देयर, ये यहाँ पे दिस प्लेस, ये जो इतना है यहाँ से इट इज गोइंग टूवर्ड्स द वेल एंड फ्रॉम वेल इट इज गोइंग डाउन। जो संप बना है, संप यहाँ ही पे बना हुआ है, इट हैज बीन मेड हियर ओनली, पाइप के थ्रू दिस इज कमिंग डाउन एंड रिचार्जिंग द ग्राउंड। अब देखिए, टेक वाटर फ्रॉम द वेल लेटर, वाटर फ्रॉम द वेल रिचार्जेस द अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड पानी खूब सारा भर गया, अब ये पानी इस्तेमाल के लिए तैयार है। तो क्या होगा, व्हेन सच अ गुड अरेंजमेंट हैज बीन मेड, कभी भी वाटर की क्राइसिस तो डेफिनेटली नहीं होगी। गॉट इट? डेफिनेटली वाटर क्राइसिस वोंट बी देयर। रेन ड्रॉप्स, दे आर सेइंग, दे आर आस्किंग, आर यू अ वाटर हार्वेस्टर? क्या पानी सेव कर रहे हैं? काउंट द रेन ड्रॉप्स, कितनी बारिश हो रही है, कितना पानी आप सेव कर रहे हैं, वी नीड टू फाइंड इट आउट। जस्ट सी कितने अच्छे से यहाँ पे पानी कलेक्ट हो रहा है। छाता, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट ऑन आवर सेल्स, वो उस तरह से उन्होंने इस तरह किया है व्यवस्था कि वाटर इज कलेक्टिंग इन दैट अम्ब्रेला, ताकि बाद में ये पानी यूज हो पाए। ओके अब क्या है, बीकानेर में, अब देखो सेमी एरिड एंड एरिड रीजन में जहाँ पे सूखा पड़ता है, विच इज अ डेजर्ट एरिया। अभी चिल्ड्रन हियर आई वुड लाइक टू से वन थिंग वेरी क्लियरली, एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, दीज आर द वेदर कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया लॉन्ग बैक। अभी वेदर कंडीशन, ये 8-10 साल पहले ये बुक लिखी गई है, उस समय राजस्थान में सूखा पड़ता था। आजकल तो अक्सर राजस्थान गुजरात में बाढ़ आ जाती है। Yeah, it's an era of global warming and it is affecting the weather conditions badly. ठीक है, अब देखिए फिर से राजस्थान का एग्जाम्पल इज गिवन हियर, सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, बीकानेर, फलोड़ी, बाड़मेर, सब हाउसेस में, ये ज्यादातर हाउसेस में क्या है, दे हैव अंडरग्राउंड टैंक्स। अंडरग्राउंड में हर
एक घर में टैंक बना हुआ है एंड दीज आर कॉल्ड एज टंकास। इनको, ये जो टैंक्स हैं, ये जो हौदा है, इनको क्या कहते हैं? टंका कहते हैं। एंड दे आर स्टोरिंग द ड्रिंकिंग वाटर देयर। इतना बड़ा बड़ा टैंक हो सकता है दैट इट कैन बी एज लार्ज एज अ बिग रूम। फलोड़ी में क्या है? दे हैड अ टैंक दैट वाज 6.1 मीटर्स डीप। 6 मीटर डीप मीन्स इट्स हाइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की जो हाइट होती है। 4.27 मीटर्स लॉन्ग एंड 2.44 मीटर्स वाइड। इतना ज़्यादा गहरा है, आप ये सोच लीजिए दैट ये जो टंकास हैं दे वेयर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप, छत के ऊपर इस तरह की व्यवस्था की गई है। It has been built inside the main house or the courtyard. Courtyard, आंगन, आंगन, सिंपल लैंग्वेज, प्लीज अंडरस्टैंड इन अ सिंपल लैंग्वेज। आंगन में इस तरह की व्यवस्था की गई है एंड इट हैज बीन ऑल कनेक्टेड विद द स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउस। एक पाइप के थ्रू स्लोपिंग रूफ जो है, जो ढलान वाली जो छतें हैं, उससे ये कनेक्टेड है। It would travel down the pipe and stored in these underground tankas. इन टंकास में ये सारा पानी स्टोर हो जाएगा। And the first spell of rain, जैसे ही बारिश होगी, ठीक है, it was usually not collected, क्योंकि अभी क्या है कि roof and the pipes, it would clean the roofs and the pipes, the rain water from the subsequent, उसके बाद अगर बारिश होती है then it was collected in the underground। कितनी अच्छी व्यवस्था है। So scientifically thought and in a very local manner, look how water is being conserved and water is being preserved, isn't it? It's a good thing to understand. रेन वाटर टंकास में स्टोर हो गया। उसके बाद चिल्ड्रन जस्ट सी व्हाट इज मेंशन्ड हियर कि टिल द नेक्स्ट रेनफॉल मेकिंग इट एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, 1 साल तक ये पानी चला। हाउ नाइस, रियली गुड। ओके, व्हेन ऑल अदर सोर्सेज आर ड्राइड अप, सारा पानी जब सूख जाएगा उस समय इस पानी का इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। वेरी एनकरेजिंग एंड वेरी नाइस। ओके, अब आप ये देखिए, जस्ट सी हियर, इसको कूल कहते हैं। दिस इज अ कूल, लीड्स टू अ सर्कुलर विलेज टैंक एज द अबव इन द काजा विलेज, फ्रॉम विच वाटर इज रिलीज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये देखिए, दिस इज अ कूल, एक विलेज में इसको उन्होंने बनाया है। हाउ दे हैव कंजर्व द वाटर, प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द विलेज। काजा विलेज की ये फोटोग्राफ है, जहाँ से कि व्हेनेवर वाटर इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे जैसे भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे वाटर वुड बी अवेलेबल। गॉट इट चिल्ड्रन? तो ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, प्लीज अंडरस्टैंड that importance of water has been felt with each and every generation। हर एक को पानी की जरूरत, ऐसी कोई जनरेशन नहीं है जो कह दे ना 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 हम तो पानी के बिना रह लेंगे। इट कांट हैपन एंड इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो एवरीबडी एंड एनीबडी हैज मेड अरेंजमेंट फॉर दिस एंड पर्टिकुलरली समर्स में क्या होता है, रेन वाटर इज देयर, और पालर पानी जो है, कॉमनली इसको हम यही कहते हैं पलार पानी, ठीक है, आई एम सॉरी, पलार पानी, याद रखिएगा। रेन वाटर को लोकल लैंग्वेज में, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड एज पलार पानी। तो इट इज कॉमनली रिफर्ड टू इन दीज पार्ट्स, इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। वेरी ट्रू। आप कभी रेन वाटर जो है, जब बहुत तेज बारिश हो ना, गिलास बाहर रख देना, ऐसा देख लेना ऊपर छत ना हो, डायरेक्टली आसमान का पानी उसमें पड़े, टेस्ट दैट वाटर। बचपन में आई हैव डन इट। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल कि ये पानी ज़रूर थोड़ा सा पीना चाहिए, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। तो आई यूज टू डू इट एंड इट टेस्ट रियली गुड। सबसे मीठा पानी होता है ये, बिलीव मी चिल्ड्रन, बिकॉज आई हैव डन इट, दैट्स व्हाई आई कैन शेयर इट विथ यू।
तो मेनी हाउसेस क्या होता है, वट एवर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टंका, ठीक है। तो टंका से बिल्कुल लगा हुआ उसी के ऊपर इन्होंने क्या किया हुआ है, रूम्स बना दिया है। समर में जब बहुत गर्मी पड़ती है, इट वुड कीप द रूम कूल, पूरा का पूरा कमरा ठंडा रहेगा ना। क्यों? अरे नीचे तो टंका है, पानी है पूरा नीचे, तो जो ज़मीन की हीट है वो आप तक नहीं पहुंचेगी। इमेजिन हाउ वेल थॉट ऑफ। उतना पैसा नहीं है ना कि हर जगह एसी लगा लें एंड दे कैन मेक अरेंजमेंट्स। तो ये टंकास के ऊपर रूम बनाने का जो एक कल्चर है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट नीड्स टू बी लर्न अबाउट। हम इसको सीख सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है ये। ओके, अब आप देखिए, ये आपने कुल देख लिया, एक बारी फोटो देखिए, ट्रेडिशनल चीज़ों को कितना हाईलाइट किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब एंशियंट पीपल कैन मेक सो अरेंजमेंट्स, तो आजकल की दुनिया के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? वाई द प्रेजेंट पीपल कैन नॉट डू दीज अरेंजमेंट्स? ओके, दिस इज देयर। अब आप ये देख लीजिए, अब यहाँ पे एक देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वी मस्ट नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट। रूफ टॉप रेन वाटर जो है, ठीक है, द रेन वाटर दैट इज हार्वेस्टिंग मोस्ट कॉमन, कहाँ कहाँ पे ये हो रहा है ये भी देखिएगा। शिलोंग, मेघालय, इट इज इंटरेस्टिंग क्योंकि चेरापूंजी एंड मौसिनराम, चेरापूंजी मौसिनराम हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरियाज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे, हाईएस्ट रेनफॉल। लेकिन फिर भी दे आर फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। हर एक, अरे जहां सबसे ज्यादा बारिश हो रही है वहां पे पानी की कमी कैसे हो सकती है? ठीक है, दे हैव द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। 15 to 25% क्या होता है ना टोटल वाटर जो इनका है, तो ये छत पे जो पानी कलेक्ट कर रहे हैं उसी से ये यूज करते हैं। दैट इज वॉट इज यूज्ड फॉर फर्दर हार्वेस्टिंग पर्पस। ओके, तो दिस इज जस्ट सी हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। Okay, now just see many parts रूरल एंड अर्बन इंडिया में, ये तो हो गया, दिस इज देयर। अभी क्या है वेस्टर्न राजस्थान में, राजस्थान का एग्जाम्पल हम बार बार इसलिए ले रहे हैं, बार बार वी आर टॉकिंग अबाउट राजस्थान बिकॉज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि इट इज डिक्लाइनिंग। वाई? इंदिरा गांधी कैनाल के वजह से अब क्या है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द डिक्लाइन, क्योंकि अब आराम से पानी इज अवेलेबल बिकॉज इंदिरा गांधी कैनाल वहां बना दिया है। गवर्नमेंट हैज मेड अरेंजमेंट, दे हैव मेड द कैनाल सो दैट वाटर इज अवेलेबल फॉर द पीपल विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना किसी रोक के। दो सम हाउसेज स्टिल मेंटेन द टंकास, अभी भी कुछ घर हैं जहाँ पे टंकास हैं, लेकिन टैप वाटर दे डू नॉट लाइक, क्योंकि आई टोल्ड यू ना, रेन वाटर वंस यू टेस्ट इट you will not like it is any other water, it is so pure and it is so sweet। तो नल से जो पानी आता है उसका टेस्ट लोगों को समझ में नहीं आता है, सो दे आर स्टिल प्रैक्टिसिंग, बहुत ज़्यादा जिनको कि ट्रेडिशनल मेथड में विश्वास है, दे आर प्रैक्टिसिंग दिस लोकल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, अब आप ये देखिए, रूरल एंड अर्बन इंडिया जो है, गांव जो हैं, शहर जो हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये हर जगह है। इट इज़ फाउंड एवरीवेयर, अडॉप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर, पानी को स्टोर कर बीइंग प्रैक्टिस स्पेशली गेंडाधूर में। गेंडाधूर ये एक बैकवर्ड विलेज है, बहुत पुराना सा एक पिछड़ा सा गांव है मैसूरू कर्नाटका में। वहाँ पे क्या है, विलेजर्स हैव इंस्टॉल्ड इन देयर हाउस होल्ड, अपने घरों में उन्होंने क्या किया हुआ है, दे हैव इंस्टॉल्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, अपनी पानी के रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, टू मीट देयर वाटर नीड्स।
200 households are there. 200 घर हैं. They have installed this system. रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम उन्होंने लगाया है. कर्नाटका की बात कर रहे हैं. एंड विलेज हैज़ अर्नड अ डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर. बहुत अच्छा है. इतनी व्यवस्था की. ये जस्ट सी, लेट्स सी दिस फिगर 3.6. ये देखिए 3.6. कैन यू सी दिस? हाउ दे हैव मेड अरेंजमेंट ऑफ द रेन वाटर यूटिलिटी एंड रेन वाटर कलेक्शन. देखिए बड़े बड़े पाइप्स जो हैं ऊपर से पानी ला के इसको नीचे में कलेक्ट कर रहे हैं. गॉट इट? तो ये एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल को वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास. एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल बी ऑल्सो कंप्लीटिंग द chapter. My we are about to complete the chapter. 2-3 things are there. We will be completing it in the next class, children. Till then, thank you so much and all the best to you.